competition has a few key objectives, which are to enhance communication skills and critical thinking among the students, to identify excellent speakers and help them access different platforms through Bahrain University Islamabad campus, as well as to promote national integration and tolerance amongst the youth, as well as promote healthy activities among the students. I would like to invite Qasim and have him read the rules and regulations to you. The rules and regulations for the declamation contest will be as follows. The contest will be spread over 2 rounds. In the initial round, all contestants must participate. Each speaker will have 3 minutes and 30 seconds to speak. First bell will ring after 30 minutes, while the final after 30 seconds. On the second bell, the speaker will have to leave the rostrum. Marks will be deducted for failing to observe the stipulated time limit. 3 marks per minute. A speaker making offensive remarks about any important personage or passing controversial religious, political, or sectarian comments shall be immediately disqualified. Using words, sentences with any indecent connotation and passing derogatory remarks will lead to instant disqualification of the speaker. In such situation, the speaker may be asked to step down from the stage during the speech. The speaker will be judged on the content of their speeches, their proficiency of the respective language, and response from the audience. Now I'd like to call upon the stage Hamza Yaqub for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. And with that, ladies and gentlemen, I'd like to introduce you to our wonderful judges who will be evaluating the English participant's speech. We have Ms. Tabinda Sadiq from the Media Studies Department, Ms. Huma Vakar from the Department of Humanities and Social Sciences, and Ms. Tuba Shakur from Humanities and Social Sciences Department. और उर्दू स्पीचेस को जज करने के लिए हमारे पास जो जजेस हैं वो हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से मिस मालिका फरहाद दीबा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ, HSS डिपार्टमेंट से मिस शाजिया शकील और मिस तहरीम अहमद मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट से. Today's round will consist of 2 topics, a serious and a humorous topic. One participant will deliver in Urdu and the other in English. सबसे पहले कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से आएंगी महनूर इजाज़ और आप उर्दू में तकरीर करेंगी. महनूर इजाज़. और उसके बाद अशर मुस्तफ़ा के बाद में आ जाओ. और उसके बाद हमारे पास इंग्लिश स्पीच में अशर मुस्तफ़ा होंगे और आप भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में से हैं. नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, सतरसी एहतशाम और मौज़े सामी. आज की तकरीर के उन्वान पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं सोच की अता गहराइयों में डूबती चली गई, क्योंकि ये सिर्फ एक उन्वान नहीं है, ये तो हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल की वो नसीहत है जो आज के नौजवान को ओजे सुरैया तक की परवाज़ का रास्ता बता रही है, ज़िंदगी में कामयाब होने का पता दे रही है, दुनिया में कामयाब होने का पता दे रही है और अपनी सलाहियत की बदौलत गैरों पर गालिब होने की नवीद सुना रही है और कामयाबी के तमाम सीने अबूर करते हुए इस आलमी दुनिया में अपना मुकाम हमेशा हमेशा के लिए अमल करने का पैगाम दे रही है. ज़रा गौर तो कीजिए, सदर मोहतरम इलामा इकबाल ने हम नौजवानों को कितनी खूबसूरती से मुखातिब करते हुए कहा है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. लेकिन आज हम कहाँ हैं? अफसोस अफसोस जनाबे आली अपने आबा और अजदाद के बंदो नज़ा के बजाय अगयार के रास्ते पर चल निकले हैं. छोटे छोटे मकासद
हासिल करने के लिए अपने असल ज़िंदगी के मकसद को खो दिया है और सोने और चांदी से मुतासिर होकर अपने किरदार की मजबूती को फरामोश कर चुके हैं। शाहीन के बजाय करगस के रास्ते पर चल निकले हैं और तवक्का कर रहे हैं कि इसी रास्ते पे तमाम कामरानियां हमारी मुंतज़िर हैं। दर हकीकत सदर सीवकार रहते हैं दोनों इसी एक फिजा में, शाहीन का जहां और है करगस का जहां और। मौज़ी सामीन, जब बातिल हक पर गालिब आने लगे, जब सच और झूठ में फ़र्क करना महाल हो जाए, जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रिश्वतखोरी और हेरा फेरी रिवाज बनने लगे, जब किसी की इज्जत जान और माल की हिफाजत न रहे, जब मेरिट की धज्जियाँ उड़ने लगे, तो जान लीजिए कि कौम का शराज़ा बिखरने वाला है। तो जान लीजिए कि कौम अपने असल मकसद से हट गई है। तो जान लीजिए कि कौम अपने तालीमात को छोड़कर तबाही के रास्ते पर चल निकली है। आज का नौजवान परेशान है, जहनी इंतशार का शिकार है। वो शाहीन तो बनना चाहता है लेकिन आज का दौर उसे बनने नहीं देता। वो सच तो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। वो हक का साथ देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता। ये वो मजबूरियाँ सदर मोहतरम जो आज के नौजवान को इकबाल का शाहीन बनने से रोकती हैं। सीना अफलाक से उठती है आह सोचनाक, मर्द हक होता है जब मरऊब सुल्तान और अमीर। मेरे अजीज साथियों, ये वक्त है खुद को पहचानने का, ये वक्त है अपने आप को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराने का, ये वक्त है अपने आबा और अजदाद की तालीमात को याद करने का, क्योंकि इकबाल ने हम नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है। तो ये वक्त है शाहीन बनने का। शाहीन की परवाज़ बुलंद होती है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। वो अपने शिकार पर नज़र रखता है और शिकार करना जानता है। वो दुनिया पे हुक्मरानी करना चाहता है। सदर मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारा नौजवान बेपनाह सलाहियतों का हामिल है। वो इनकलाब बर्पा कर सकता है, वो पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क बना सकता है। बस ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि वो इकबाल का शाहीन बन जाए। चाहे तो बदल डाले हैयत चमनिस्तान, ये हस्ती दाना है, बीना है, तमाना है। मौज़िज़ सामीन, आए आज मिलकर तशदीद अहद करते हैं कि हम तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक नए दौर का आगाज़ करेंगे, क्योंकि हम हैं इकबाल के शाहीन, हम हैं पाकिस्तान के शाहीन। हमने कसर सुल्तानी की गुंबद बसेरा नहीं करना, हम तो शाहीन हैं। हमारा बसेरा है पहाड़ों की चट्टानों में। शुक्रिया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरान से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। ये थी महानूर। अब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से इंग्लिश स्पीच के लिए आ रहे हैं हसन काज़मी। The first lesson was that grades don't matter because we are not products like if we have a stamp on our head that would judge who we are. Our personality defines us and nothing more than that. Or if you look at it in the end, grades are just alphabets. And the lesson number 2 is there's always that one uncle whose beta is going to Harvard University, getting top marks and everything. But we know he's the biggest drug addict in university. Achha. The third lesson is my personal favorite. There are only 2 types of students that are happy. Those who get an A grade because thank God they didn't invent a grade higher than that. And a D grade because thank God they didn't fail. And they can go in front of their parents and say, look, Dad, Mom, I passed. Achha. Now God bless their hearts. Okay. And in the end, what matters is knowledge, what you have attained, the skills you can use in real life, not what you have in a degree, because you can't apply that. Okay. Now imagine this scenario, you walk into an interview looking all, wearing a 3-piece, looking pretty good and nice, and now when they ask you the first question, you don't know what it was. But you've done good marks, you've gotten good grades, and you've done 2 major projects. But what's the use? You didn't get the job. However, if your skills impress them, you will get the job. At the end of the day, stop crying over C grade and work on improving your knowledge and skills that in that particular subject. So my fellow students, be assured no matter what grades you get, at least you are still alive unless your parents don't want to kill you. I doubt mine. Okay. I'm not a professional debater, but I hope everyone present in the auditorium gets my point. And one last but not least, there was a teacher, he told me that if you don't get good grades, you won't get a degree. If you won't get a degree, you won't get married. If you won't get married, no wife. No wife, no life. But I don't think a degree should, interact with such things. A personality should. Okay, thank you. ये थे हसन काज़मी जो कि अंग्रेज़ी में अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं मदऊ करूँगा इन्हीं के हम नाम सैयद हसन फराज को, ये उर्दू में तकरीर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
न बिक सकी किसी बाजार मसलहत में कभी, न बिक सकी किसी बाजार मसलहत में कभी, मेरी ज़बान की सदाकत मेरी अना की तरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का मौजू है तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। लेकिन क्या हम जानते हैं इकबाल ने नौजवानों को शाहीन ही से तशबीह क्यों की है? बकौल इकबाल, शाहीन की तशबीह महज एक शायराना तशबीह नहीं है, बल्कि इसमें इस्लामी फ़िक्र की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। खुददार और गैरतमंद है, औरों के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, आशियाना नहीं बनाता, बुलंद परवाज है और तेज़ है। इकबाल को ये परिंदा अपनी खूखारी के बायस पसंद नहीं, बल्कि इसमें वो तमाम खुसूसियात हैं जो एक मर्द मोमिन और मर्द दरवेश में होनी चाहिए। और इकबाल अपने नौजवानों को इन्हीं सिफ़ात का तो हामिल देखना चाहते थे। तो मैं यूँ, अगर आज के नौजवानों पे नज़र डाली जाए तो मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि हवा के दोष पर उड़ने वाले ये बेलगाम शाह सवार, वतन अजीज़ की फना को बका का नाम देने वाले ये गद्दार, ये शाहीन, ये इकबाल के शाहीन जिसकी खाक लायक ताज़ीम मलाइक थी, वो आज ज़वालो इकबाल की कशमकश के खो जाने के बाद औजे फरीदा से कारे गुमनामी में जा गिरा है। वो आज अर्श से गिराए जाने के बाद फर्श की पाताल में जा बसा है। जनाब सद्र, ये शाहीन ज़बान जिनकी काली है, मुंह में जिनके गाली है, कान में जिनके बाली है, मुनाफ़िक़त जिनकी मिसाली है, मुकद्दर जिनका ज़वाली है, फ़कत गुफ्तगू ही निराली है। वो आज अपने किरदार को अपने गुफ्तार के लबादे में लपेटने के बाद, मेरे कायद के फरमान को कुचलने के बाद अगर ये समझता है कि वो अक़वाम आलम की सफ़ में मार का राय करने के काबिल है, तो ये फ़कत खाम ख्याली है, ये दीवाने का ख्वाब है। जनाब सद्र, कि अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। गवादी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। जनाब सद्र, अगर आज भी इनसे पूछा जाए तो बहाना फ़कत एक है इनके पास कि वक्त आजमाइश का है। हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हैं कि कोई आए और इन्हें इस आजमाइश से निकाले। नहीं, सुनो, वक्त तो उस वक्त भी आजमाइश का था जब तुम्हारे इब्राहिम आतिश नमरूद में कूद गए। वक्त तो उस वक्त भी आजमाइश का था जब तुम्हारे बिलाल अरब के तपते मैदान में आहत आहत पुकारते रहे। वक्त तो उस वक्त भी आजमाइश का था जब वतन अजीज के सपूत अपने जिस्मों से बम बांधकर दुश्मनों के टैंकों के पर रख्चे उड़ाते रहे और ये कहते रहे कि तख्ता तख्त में से एक चुना करते हैं। हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो अब क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ेद चीर दिया करते हैं। मेरे दोस्तों, आज भी इकबाल अपने पूरे जोशो जलाल के साथ इश्क की बुलंदियों पर खड़ा अपने ख्वाब के शर्मिंदा ताबीर होने के इंतज़ार में नौजवानों पर नजरें जमाए बैठा है कि शायद फिर कोई उमर पैदा हो और अपनी शुजाअत पेश करे, कि शायद फिर कोई सिद्दीक अपनी सदाकत से नवाजे, कि शायद फिर कोई उस्मान अपनी सखावत दिखाए, कि शायद फिर कोई अली खैबर फतह करे, कि शायद फिर कोई हुसैन करबला पर अपनी जान निछावर करे, कि शायद फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम अपनी बहन की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ सिंध में आए। मगर आज भी हमारे जिस्म तो आज़ाद हैं, लेकिन हमारी रूहें गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया। थे तो वो तुम्हारे ही अबा, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। ये थे सैयद हसन जो कि उर्दू में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब इंग्लिश स्पीच के लिए आएंगी कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही फातिमा ज़हरा। You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may treat me in the very dirt, but still, like dust, I will rise. Mr. President, respected teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum. There is a beautiful sentence by which humanity has lived by since eternity, which says, I am possible. This beautiful sentence has been converted into a senseless word by an irrational fool called impossible. This fool has been best defined by Albert Einstein when he says, stay away from negative people. They have a problem for every solution. We need to find that fool, and if it were to me, I would hang them till death. How dare they make the crown creation of Allah into believing that anything in this world is impossible.
Ladies and gentlemen, the topic which I have selected for my speech today is a line written by Belgian actress Audrey Hepburn, "Nothing is impossible. The word itself says, I am possible." Iqbal said, "You behold the world, but you do not behold your own self. You should enlighten the night with the divine light in you. You should step your foot outside the boundaries of the circling world. You are older than it. You are greater than it." Friends, creation of Pakistan is a true example in this belief. Our leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who achieved this homeland for us, which seemed impossible at one time, but with vigor and enthusiasm, he achieved his destination. Quaid-e-Azam said, "Impossible is the word unknown to me. Never say never." Friends, it's all about believing in yourself. If you have faith, dedication, and devotion to attain success, then nothing in this world can stop you from attaining success. Roosevelt said, "Believe in yourself and you are halfway there." Mr. President, accepting challenges, fighting to win them, makes a person realize his own worth and capabilities. We have numerous examples around us. We may be a part of a third world country, but our people have done the impossible. We have Miss Naseem Ahmed, who didn't have money to buy shoes, but went out to win a 100-meter race in Asian Games. We have Afa Kareem, a 9-year-old, world's youngest Microsoft engineer. Ali Moin Nawazish achieving 21 A's in A-level. Virtually nothing is impossible. Aristotle said, "It is during our darkest moment when we must focus to see the light, just as the incy-wincy spider did." Friends, are we weaker than a spider? No, we are the crown creation of Allah, and skies are our limits. So hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. Dear friends, the time is now, the place is here, and the choice is yours. I thank you all. All right, that was pretty intense, right? All right, so we have Dr. Uzma Mansoor, who is the head of Department of Professional Psychology. Can we give her a very big round of applause? All right, so I think it's time for a small refresher. So I would like to call Hassan Tahir from BSIT 4B as he will be doing some mimicry for you. So ladies and gentlemen, please welcome Hassan Tahir. What's up, Beria? Okay, so the thing is that हम लोग बहुत से shows देखते रहते हैं, mostly political talk shows, लेकिन हम सब उनसे बहुत ज़्यादा fed up होते हैं. So this one will be a lot different from other one. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा अली अब्बासी और मैं आज जी किस बारे में बात करूँ, मुल्क के हालात जो हैं वो किधर से किधर चले गए हैं. मैं बड़ा परेशान हूँ, सारी बच्चियाँ फवाद खान के पीछे पागल हैं, मेरी क्या चिकना नहीं हो, मेरे पीछे आती नहीं है. फवाद खान फवाद खान फवाद खान, मतलब मेरे तो समझ नहीं आती है मेरे साथ क्या ऐसा मेरे मसला. चलो जी, मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाते हैं. मेरे जो पहले मेहमान हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब. साद रफ़ीक साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? और ये सर क्या तमाशा बना हुआ है यहाँ की गवर्नमेंट ने, ये क्या मसला है सर? ये रेलवे का है, पाकिस्तान में रेलवे भी है. देखिए हमसे ये बहुत सबसे बड़ी गलत बात है. ये ऐसा होना नहीं चाहिए. या आप जो मर्जी कहें, लेकिन पाकिस्तान में रेलवे होनी चाहिए. ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, वज़ीर रेलवे बनाने से पहले. देखिए साद रफ़ीक साहब, ये तो कोई बात ना हुई सर. आपकी अथॉरिटी है सर, आपकी गवर्नमेंट है, आप कैसे ऐसी बात कर. देखें ये सबसे ज़्यादा जो शोशा है ये इमरान खान जो है, ये जो जी हेलीकॉप्टर पे जो ये जी सफ़र करते हैं, इसको देख देख के हमारी जो आवाम है इसको बड़ा शौक पड़ा है हेलीकॉप्टर में सफ़र करने का. तो उसकी वजह से लोग रेलवे में नहीं आते, तो रेलवे को नुकसान पहुँच रहा है. इसका सारा जिम्मेदार इमरान खान है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नाज़रीन, हम अब चलते हैं अपने दूसरे
कंटेस्टेंट क्या कहेंगे जी अपने दूसरे हमारे मेहमान की जानिब। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये क्या सर जी बिजली सर जी, क्या आपकी गवर्नमेंट की क्या सर ये गुड गवर्नेंस किस नाम के लिए? देखें ये जो है जी, ये जो है अपना अपना हमज़ा, ये जो आपने बात की है, ये मेरे मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ ये जो है वो शबाज शरीफ और ये जो है वो हमज़ा शरीफ और ये जो उनके बेटे शरीफ, उनके ड्राइवर शरीफ और ये जितने भी ये जो है वो कितने बैठे ने थे, ये जी ये जो है ये हमें फंसाया जा रहा है, ये हमें जी सारा फंसाया जा रहा है हमारे खिलाफ। ये जो है वो जी प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे मियाँ साहब जो है ये मुल्क के लिए हमने जान कुर्बान की है। और मेरी बच्ची है जो हमारी मरियम है वो जी वो भी बड़ा परेशान हुई। मैं क्या कोई नहीं शहजादी है, कोई नहीं असी कर लवांगे, पहले थोड़ा सा जी हराम मेरा मतलब हलाल था पैसा असी कमाया थे मुल्क जो वो कोई गल नहीं है। और ये जो आप बोल जाइए ये जो है वो ये जी ये 2-3 मिनट की बात है, ये आवाम सारा भूल जाएगी। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा जो भूल जाएंगे। ओके खान साहब आप भी आप आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, ये हमजा ने मुझे शो में बुलाया नहीं, मैं ज़बरदस्ती आया हूँ। इन सारों को आज मैं बेनकाब करूँगा। ये हमारी इतने ज़्यादा नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, आवाज़ उठाओ। इकबाल के बारे में अभी मैंने स्पीच पढ़ी, इकबाल क्या कहता है? इतने मुश्किल आपने शेर पढ़ लिए लेकिन एक भी शेर आपने मिस कर दिया। इकबाल कहता है बीगे होड़ तेरे प्यासा दिल मेरा। तो ये इसमें मतलब गहराई देखो, और ये जो है इसमें मतलब की गहराई देखें आप लोग। जिस दिन ये कौम जाग जाएगी उस दिन मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। और जाते जाते मेरा नौजवानों को एक पैगाम है, ये हमेशा अपने लिए खड़े हो, ये लोगों पे ना डिपेंड करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। I'd like to state a rule once again which I think is being ignored over here. रूल ये था कि हर डिपार्टमेंट से 2 कंटेस्टेंट्स होंगे, जिनमें से एक ने ह्यूमरस टॉपिक को चूज़ करना था और एक ने जो है वो संजीदा टॉपिक को चूज़ करना था। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि बेशतर इस रूल को इग्नोर किया जा रहा है, तो आई थिंक वी शुड फॉलो दिस रूल। और नेक्स्ट डे के हमारे जो सेकंड डे के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको बताता चलूँ। इंग्लिश टॉपिक्स होंगे द पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड और इफ़ आई वर अ प्रेजिडेंट फॉर अ डे। और उर्दू के होंगे फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से आप आएंगे फजर। फजर प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज। Assalamu alaikum fellow judges, students and faculty. Today I stand before you all to deliver a few words. This is for all those of you who believe in the word impossible. Now Napoleon Bonaparte once remarked that the word impossible only lies in the dictionary of fools. In this world, nothing is impossible. Everything is possible on the basis of willpower, dedication, and sacrifice. Now, to accomplish the toughest of tasks, you need to put in a lot of effort, self-perseverance, and concentration on a single task. You need to have patience, faith, and belief in yourself, because faith works like a miracle. It transcends all limitations and looks beyond all boundary. So therefore, have faith, march forward and upward towards your goal, and never bother about the results. Even if your pace is slow, just ensure it remains steady. Now you are bound to fail, you are bound to face obstacles in your route to success. But with courage and diligence, you can conquer them. By your own will and ability, you can create chances and circumstances for yourself that can help you achieve your dreams. Now always remember that great minds have purposes, whereas others simply have desires. Little minds are tamed and subdued due to their seeming setbacks, where great minds fight their way to the victory. Now take the example of Stephen Hawking, a scientist, the world-renowned theoretical physicist. For most of his life, we have seen him bound in a wheelchair due to his motor neuron disease called the ALS. Now, one would think that it's impossible for him to do anything, but he defied us all. He brought us the theories of black hole and quantum physics. He has defied us. He has shown us that nothing is impossible. He did not let this disability slow him down. Now, in the end, I would just like to say a quote from the renowned author Paulo Coelho, the author of Alchemist, that there is only one thing that stops you from achieving your dreams. That is the fear of failure. Thank you.
ये थी अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट से फजर. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज हामिद खान फ्रॉम द अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज. अब बारी है जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, और इसमें सबसे पहले मैं दावत दूंगा स्टेज पर असद जावेद को. Assalamu alaikum everyone, especially to the judges, the teachers and my dear fellows. The topic I am about to touch upon today might seem like a simple one, but everything is not as it seems. The topic being, there is no darkness but ignorance. Some of you might be thinking, I consider ignorance a bliss. I can get out of a lot of trouble with ignorance. Probably you're true. 10 to 20% of the time, that is. That's the extent. But what about all the other times that ignorance might get you into trouble? Now, most of you might be saying, then why don't you prove it? To that I say, let's begin. Look back at all the trouble caused in the world, all the wars that have been fought, all the lives lost. What was at the root of it all? Was it greed? Was it bloodshed? Probably yes. But the point I'm trying to state that it was ignorance. I know I'm not supposed to touch on a few of these things. To that I say I'm sorry. Okay. Look back at what Hitler did. To him, to his perspective, it was a cleansing of the world. But look at all the bloodshed that happened. He knew what was happening. He was ignorant. Same is the case with Stalin. I still don't have you convinced. Look at Shaitan. How did Shaitan come into being? He was ignorant. He was arrogant. What I'm trying to say is, even when the root of evil began with ignorance and arrogance, to some extent, why don't people still believe that? I know what you're going to say. It's up to every person in their perspective if they want to consider it a bliss or eternal darkness. Okay, everyone has their views, but this is mine. I'd like to add something. History always remembers the battle, but not the bloodshed that succumbed to it due to ignorance. Thank you. अच्छा, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ आ रहे हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है कि जब आप स्पीच अपनी स्टार्ट करने लगें तो उससे पहले जो भी आपकी स्पीच का टॉपिक है उसको क्लियरली स्टेट कर दें. अच्छा, ये थे अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से असद जावेद. अब अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से ही नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थे असद जावेद. इसी डिपार्टमेंट से आप आएंगे ज़िशान जावेद. दाल में कुछ काला है. क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे संजीदगी के साथ सुन रहे हैं? तो फिर इस सोई हुई आवाम को भी जगा दीजिए, वरना बैरिया की आवाम कहेगी कि दाल में कुछ काला है. जनाबे वाला, मैं मुकर्रर हूँ संजीदा, तो इसलिए मैं हो गया रंजीदा, क्योंकि आपने मुझे मौजू दिया है मज़ाहिया. जनाबे वाला, ये तो भला हो मेरे दोस्तों का जिन्होंने कहा, सफ़ेद हो या काला तुम्हारा तो मुंह जैसे जले हुए बैंगन का प्याला. सफ़ेद हो या काला तुम्हारा तो मुंह जैसे जले हुए बैंगन का प्याला. जनाबे वाला, मेरे दोस्त कहने लगे कि तुम्हें तो देख कर ही लोगों को हंसी आ जाएगी. पिछले कुछ सालों की बात है कि मुझे अपने मोहल्ले की एक लड़की से मोहब्बत हो गई. मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, मेरा जीना महाल हो गया. वो लड़की थी शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी. कुछ कहना था उसे, पर कुछ कहने से वो डरती थी. वो जो कुछ कहने से डरती थी, वो कहती थी कि ये अंडे वाला बर्गर कहाँ से मिलता है, ये अंडे वाला बर्गर कहाँ से मिलता है. जनाबे वाला, मैंने कहा तुम मेरी मुराद हो, A to Z याद हो, मेरा चैन हो, सुकून हो, करार हो. वो कहने लगी तुम दिल के अच्छे, मोहब्बत के सच्चे, पर मैं क्या करूं, मेरे 10-10 बच्चे, मेरे 10-10 बच्चे.
जनाबे वाला खैर छोड़िए, फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक पर मैंने क्यूटी प्रिंसेस को हिम्मत करके मैसेज किया आई लाइक यू। वो मुस्कुरा दी, मेरे से रहा ना गया, मैंने कोशिश की और उसे दोबारा मैसेज किया आई लव यू, पर रिप्लाई ना आया। मैं परेशान हो गया। जनाबे वाला वो तो बाद में पता चला दाल में कुछ काला है, वो तो आबिद छोले वाला है। खैर जनाबे वाला, साल 2016 मैं जवान हो गया। मैंने घर वालों को कहा मेरी शादी कर दें। मैंने छोटी छोटी बात पर लड़ना शुरू कर दिया। जनाबे वाला, मेरी लड़ाई को देखते हुए मेरे घर वालों ने कहा कि आखिर मसला क्या है। मैंने कहा अम्मा जी मेरी शादी कर दें। अम्मा जी कहती हैं अपना कद देखो और अपने जज्बात देखो। खैर जनाबे वाला, अगले दिन हम रिश्ता देखने चले गए। मेरी अम्मा जी कहने लगी ये हमारा प्यारा बेटा है, बहुत मासूम है, बहुत प्यारा है। वो कहने लगी शक्ल से तो लगता है दाल में कुछ काला है। जनाबे वाला ना हो गई। ना के फौरन बाद हम अगले दिन दोबारा रिश्ता देखने चले गए। जनाबे वाला वहाँ से भी ना हो गई। खैर 20 रिश्तों की ना के बाद घर वाले हिम्मत हार गए, पर मैं मायूस नहीं हुआ। उन्हीं दिनों शरीके वालों ने मेरे बड़े भाई का कत्ल कर दिया। मैंने बदले में रिश्ता मांग लिया। जनाबे वाला, शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं पहली बार बेगम के पास गया तो बेड पर बैठने की जगह ना थी। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। खैर मैंने जगह बनाकर बेड पे बैठा, बिस्मिल्लाह पढ़कर घूंघट उठाया और अस्तगफिरुल्लाह कह के वहीं पे वापस रख दिया। जनाबे वाला, मेरे तो रंग ही उड़ गए। मेरे उड़ते रंगों को देखकर बेगम कहने लगी, बेगम ने बात बदली, कहने लगी हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे मुंह दिखाई में क्या देंगे। मैंने कहा तलाक दी। I would now like to call Suhaib from BSS 1 Media for another refresher. मैं कुछ दिन पहले एक पार्टी पे गया और वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे एंड पार्टी भी बहुत फिट थी यार, ज़बरदस्त, बिल्कुल फिट पार्टी थी। काफ़ी लोग थे, सेलिब्रिटीज़ थे, हमारे एक्टर वैक्टर थे। मुझे किसी ने कहा कि चलो पहले इंटरव्यू लो। तो आए से कि किसका लूँ? तो मैंने कहा चलो खान साहब का ले लेता हूँ, अपने पाकिस्तानी भाई हैं। सबसे पहले खान साहब का। मैंने कहा खान साहब क्या चल रहा है आजकल? खान साहब चलना क्या है, मुझे बताओ चलना क्या है? जब आपके मुल्क में खाने को कुछ नहीं है अवाम के पास, बेरोजगार अवाम है, चलेगा क्या? यार मेरी बात बड़े ध्यान से सब सुन ले आप। मैं कहा खान साहब पार्टी है, थोड़ा सा चिल करें। क्या हो गया, आप तो बिल्कुल दिल पे ले गए हर बात। हाँ, कभी तो चिल किया करें। चिल करने का कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है मेरे पाकिस्तानियों। चिल वही करता है। मुझे उन्होंने कहा छोड़े, खान साहब को छोड़ें, अपने शाहरुख खान को जाके पकड़ें, वो भी आए हुए हैं। मैं कहा मैं तो उनको बहुत बड़ा फैन हूँ। सो आई जस्ट वेंट नियर हिम एंड अस्सलाम वालेकुम शाहरुख सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बड़ा फैन। मेरे तुम फैन हो? मैं बात कर रहा हूँ ना यार, तुम्हारे सामने शाहरुख खान बात कर रहा है। मैं कहा शाहरुख सर, दुनिया की, पाकिस्तान की लड़कियों को पागल किया इंडिया की, आखिर अब क्या प्लान है, कब रिटायर हो रहे हैं आप फिल्म से? फिल्म से कभी रिटायर कोई नहीं होता। हाँ? मेरा दिल मेरी जान फिल्म से जुड़ी है यार। जितनी भी पारो हैं यहाँ पर, जितनी भी पूछा, सब अभी दिल में, यहाँ पे मेरे यहाँ। वक्त आ गया है कि सब लोग अपनी बाहें फैला लें शाहरुख खान की तरह। मेरे जैसा बनो, बी लाइक शाहरुख खान। मैं क्या ठीक है, बिलावल सर वहां पे थे। मैं क्या बिलावल आप कैसे हैं? इट्स लाइक तुमको किसने भेजा है? आई वॉज लाइक यार मैं रिपोर्टर हूं, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, किसने भेजेगा? तुम्हें पता है मेरे पापा ने पाकिस्तान बचाया? आई वॉज लाइक कहां बचाया? मेरी नाना ने पाकिस्तान बचाया, मेरी मामा ने पाकिस्तान बचाया। मैं कहा आप छोड़ें, मैं आई जस्ट वेंट टू शहबाज शरीफ और मैं कहा खादमे आला बहुत एक्टिव रहते हो हर वक्त। क्या चल रहा है?
ये मुल्क है, ये मुल्क का सत्यानाश कर दिया पीटीआई ने। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये जितनी आवाम पीछे वाली है बिल्कुल चुप है। क्यों चुप हो नौजवानों? आप ही की यूनिवर्सिटी है, आप ही के लिए तो मैं आया हूँ, तो थोड़ा सा तो शोर मचाओ, आपके लिए तो आया हूँ। एंड तो वहाँ पे एक और जर्नलिस्ट भी थे, कामरान खान। सो वहाँ पे कामरान खान थे एंड वहाँ पे कामरान खान, मैं कहा आप सारी रात शो करते हैं, कुछ काम नहीं करते? हाँ मैं शो तो करता हूँ लेकिन मैं कुछ घर के काम भी करता हूँ। मैं हूँ कामरान खान और पाकिस्तान की सूरत हाल पर कामरान खान बताएगा कि किस तरह मैं जियो से दुनिया पे आया और अब दुनिया से मैं फिर कहीं जाऊँगा। फिर मैं शाहरुख खान पे आ गया। मैं कहा इससे सब बोलेंगे, आप ही बताएं। इस पार्टी की हवा में बची हैं सब। तुम लोगों को एंट्री से तो रोक लोगे, इस हवा को कैसे रोकोगे? किस तरह रोकोगे तुम इस हवा से? वहाँ पे खान साहब अपनी पड़ी हुई, कुछ और नहीं रहा अपनी मुल्क में। जब तक नौजवान नहीं आएंगे, जब तक पाकिस्तान आगे नीचे बढ़ेगा, जब तक मैं एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा कि यूएसए से लोग पाकिस्तान में आएंगे। मेरे नौजवानों, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। और फिर बिलावल, फिर वहां पे अपनी लगे हुए बिलावल भी, अंकल अल्ताफ का फोन पापा को आया, उन्होंने कहा बिलावल यू आर टू यंग फॉर पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा अंकल अल्ताफ मेरे तो नाना ने मुल्क भी बचाया, मेरी तो मामा ने भी बचाया, अब मैं भी बचाऊंगा। So that's it from my side. Thank you. बहादुर शाह जफर ने कहा था, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह नहीं है दिले दागदार में। तो अनवर मकसूद साहब ने इसको थोड़ा सा चेंज किया। वो कहते हैं इन घंटियों से कह दो कहीं और जा बजें, इन घंटियों से कह दो कहीं और जा बजे, इतना वक्त नहीं है मेरे इख्तियार में। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अक्सर लोग जो है वो इस घंटी को इग्नोर कर रहे हैं। जो पहली घंटी है वो 3 मिनट पे बजेगी, दूसरी घंटी 30 सेकंड पे बजेगी, तो आपने इसको फॉलो करना है। अब है जी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट से हमजा याकूब। We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Ladies and gentlemen, these were the words of Winston Churchill, the ex-Prime Minister of Britain in the times of war. Today, I have been given this opportunity to speak on a topic that motivates us to build perseverance. In the warrior's code, there is no surrender. Though his body says stop, his spirit cries never. What a powerful verse indeed. And I think we can extract mammoth inspiration from this one line. The devil once whispered to a warrior, "You cannot withstand the storm." The warrior replied, "I am the storm." Ladies and gentlemen, in business and in life, there will be situations that require you to persevere. You have to show everyone that you are stronger than all the things that have hurt you, challenged you, or disappointed you. You have to show everyone that you are not a survivor, but a warrior, which means that you should not survive, but thrive. Perseverance gives you that edge. It helps you overcome all the unexpected hurdles that will surely be on your path to success. Businessmen, businesswomen, freedom fighters, inventors, students, anyone who has tasted achievement in any arena knows all too well that perseverance and dogged determination is required to go from victory to victory. They know that sticking to their goals like glue is generally the only way to prevail. People who get things done understand that most battles will be fought while moving and advancing uphill. People like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Nelson Mandela, and recently Abdul Sattar Idi are all the paragon personalities who have persevered and achieved greatness. There comes a time when we want to give up, but deep down we hear our spirit crying, never. It's okay to rest a while, bandage up your wounds, and figure out a new strategy. It's okay to be tired, perplexed, and ready to throw in the towel. That's only a part of the journey.
Every human being needs a jolt of inspiration daily. One of my favorite quotes from Gatorade is that you have a choice. Either you can throw in the towel or you can use it to wipe the sweat off of your face. May us all be inspired to get back up whenever things get tough and knock us down. Let us renew our commitment to ourselves and never lose sight of our goals. Keeping this in mind while taking action, we can be back on the road to achieving whatever we desire. Flavia Whedon, the great writer, painter, and commercial illustrator once said, if one dream would fall and break into 1,000 pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again. Because remember, you are a warrior, and warriors are built from the struggle formed through pain and strengthened by adversity. Embrace your challenges and push through them like the warrior you are. Thank you so much. किसी ने कहा था, नाम मैं नहीं लूँगा, we'll fight and we'll fight for 1,000 years. ये थे हमजा याकूब और अब ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट से ये आ रहे हैं हारून गुलजार। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, सबसे पहले दिल की अता गहराइयों से आपको मेरा सलाम। जनाब सदर, सबसे पहले तो मैं आज के मौजूद सुखन से कतन इत्तफाक नहीं करता, जो है दाल में कुछ काला है। जनाब सदर, क्योंकि मेरी जिंदगी की दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल ही काली है। जनाब सदर, हुस्न मुकर्रर के तहत ही सही मान लेते हैं दाल में कुछ काला है। जनाब सदर, मेरी जिंदगी की दाल तो इस कुर्रे अर्ज पर आंख खोलते ही काली हो गई। ये बात है 4 मार्च सन 1997 की, जब मैंने हाजी मोहम्मद गुलजार साहब के यहाँ आंख खोली। जनाब सदर, लेबर रूम का वो कमरा जहां पे मैंने इस दुनिया में आंख खोली, मेरे सामने मेरी वालदा थी जिनकी झोली में मुझे डाला गया। पहले डॉक्टर ने एक नज़र मेरी तरफ डाली, फिर मेरी वालदा पर डाली, तीसरी नज़र से खिड़की में बाहर खड़े मेरे बाप पर डाली और फिर मेरी तरफ देखा और कान में कुछ सरगोशी की। जी हाँ जनाबे वाला, ये इस दुनिया में पड़ने वाली मेरे कानों में पहली आवाज़ थी और मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से खुद ये डॉक्टर को नर्स के कान में कहते सुना, दाल में कुछ काला है। जनाबे वाला, फिर बात आई स्कूल में दाखिले की, तो बड़े बहन भाइयों के शहर के महंगे तरीन स्कूलों में दाखिले हुए। मेरे दाखिले की बारी आई तो घर के हालात को और कारोबार को मंदी को बहाना बनाया और मेरा दाखिला 7 वाली गली में कायम टोक खब्बे के पापा शेरू के स्कूल में करवा दिया गया। जनाबे वाला, फिर वक्त गुजरता चला गया और हर गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे ये एहसास होता गया कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये गरम मसाला नहीं है। जनाबे वाला, फिर वो मुझे जेब खर्च कम मिलने की सूरत में हो, या फिर वो मेरे घर के अखराजात में जो वो होता है माहौल में, मुझे घर में जो पार्टिसिपेशन उसमें कम मिले, या फिर वो सालन में मुझे गर्दन वाली बोटी मिलने की सूरत में हो, या फिर मुझे नहाने के लिए सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी मिलने की सूरत में हो, या बड़े भाई के कपड़े पहनने के लिए मुझे मिलने हो, या फिर वो कोई भी चीज़ हो। जनाबे वाला, मेरी ज़िंदगी की दाल तो इस हद तक काली हो चुकी है कि अब मुझे ज़िंदगी में और तारीख़ के हर किस्से में, हर वाक़ये में दाल में कुछ काला नज़र आता है। चाहे वो इकबाल का ख्वाब हो या वो तक़सीम हिंद हो, चाहे वो उस्मानियों की खिलाफत हो या मुग़लों की रियासत हो, मुमताज़ महल के मोहब्बत भरे किस्से हों या अनारकली का दीवार में चुनवाया जाना हो, अमीर तैमूर या बायजीद की आपस में जंग हो, या चंगेज़ खान की बहादुरी के किस्से हों, या हलाकू खान के मकबरे हों, मकबरे बनाए जाएं, या फिर इकबाल का ख्वाब हो, यानी नीज़ हर एक चीज़ में मुझे दाल में कुछ काला नज़र आता है। जनाबे वाला, अब तो क्योंकि मेरे ख्वाब में इसलिए हर चीज़ काली है क्योंकि मेरे ख्वाब में तो महज कचरा रानी के सिवा कुछ नहीं आता। शुक्रिया जनाब। ये थे हारून गुलजार जो आपके बता रहे थे कि इनको दाल कहाँ कहाँ काली नज़र आती है। अब बारी है लॉ डिपार्टमेंट की, और लॉ डिपार्टमेंट से इंग्लिश स्पीच के लिए मैं मदऊ करूँगा सलमान अब्बास को। In the warrior's code, there is no surrender. Though his heart says stop, his spirit cries never. Deep in our soul, a quiet ember. No, it's you against you. It's the paradox that drives us on. It's a battle of wills
In the heat of the attack, it's the passion that kills. The victory is yours alone. In the warrior's code, there is no surrender. Ladies and gentlemen, this is the topic that I'm going to be talking about today, that in a warrior's code, there is no surrender. On December 21st, 2007, I lost a big part of myself. I lost someone who taught me the meaning of life, who showed me the value of hope, faith, and courage. It was obviously a hard time for us. Everyone at one point or the other had given up except for the one who was suffering the most. He would always have a smile on his face and he would always tell us that everything will be okay, when even the little me knew that things are going to get worse instead of okay. At that time, I could not understand where did he get the energy or where did he get the attitude from or what was his message. It was after his loss and after a few years later that I realized that he left, that we lost him. We lost his existence, but he left a very strong message for each one of us. And the message was, in the warrior's code, there is no surrender. He gave us a practical example, and he practically taught us that there are going to be times in our life when we can't control the results. But what we can control is the effort, is the amount of efforts we're putting in certain situations. Okay, if we can't control the results, so what? We give up? So what? We don't put in effort? So what? We lose hope, we lose courage, we lose faith? No, we fight. We fight till the end. We make our way to the fight. And we fight till we achieve the result. Ladies and gentlemen, you don't have to wear a shiny armor to be a warrior. There are no resumes. There is no CV for you to be qualified as a warrior. A warrior is anyone. A warrior is everyone. You are a warrior. I am a warrior. A warrior is simply someone who never ever loses faith, courage, hope, who faces all of the challenges, the problems, the obstacles thrown at him, who always remains sincere to his cause. Let's look at the examples of all the successful people or even all the people who've reached somewhere in their life. One thing that we can understand from their experiences is that they never gave up. And that's the primary and that's the basic quality of a warrior. We all are warriors. Let's all be warriors. Let's all fight. Let's all fight till the end. And let's never, never, never give up. Why? Ladies and gentlemen, giving up is the most easiest thing to do. Anyone can give up. You can give up. I can give up. And giving up in a situation where we have 1,000 or million reasons to give up is the most easiest thing to do. But to actually stay there, actually remain sincere to your cause and actually fight is what counts. And this is the quality of a warrior. Thank you. ये थे लॉ डिपार्टमेंट से सलमान अब्बास. अब लॉ डिपार्टमेंट से ही उर्दू स्पीच के लिए आएंगे काजी एतजाज अजहर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब सदर, मौजूए सुखन है, होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे. मैं रोज़ देखता हूँ दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में नित नए तमाशे नमूदार हो रहे हैं. और सबसे बड़ा तमाशा तो ये अभी आपके सामने हो रहा है. अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें इस बात की दलील मिलती है जो कि अकबर इलाहाबादी ने कहा था, दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की. अंग्रेजी बोलना क्या बड़ी बात है. अगर वही अंग्रेजी इंज़िमाम बोलता था तो उस पर लोग हंसते थे. अगर वही अंग्रेजी सरफराज बोलता है तो उस पर लोग कह के लगाते हैं. क्या अंग्रेजी ही हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका है? और इनके खुद नंबर तो देखिए 33 नंबर लेके पास हुए होते हैं. आजकल लड़कियों को सेट करने का मायार अंग्रेजी बन चुका है. और चाहे वो रिहायशी छाछी मोहल्ले का ईद क्यों ना हो, और नंबर लेने का मयार तो देखिए, सर देयरफॉर आई वाज नॉट एबल टू डू. और बेशक घर में अम्मा जान ठट पंजाबी में कहती हों, और कितने रह गए सी मरण जोगिए, और वो भी बातें गेम ऑफ थ्रोन्स की करते हैं. जनाब सदर, थोड़ा आगे चलता हूँ तो एक नया तमाशा सेल्फी लेने का मेरे सामने आता है. ऐसे लगता है सेल्फी ना ली जाए तो मर ही जाएंगे.
पहले तो मोबाइल के कैमरे से सेल्फी लिया करते थे, अब तो स्नैपचैट आ गया है। जब तक कुत्तों, बिल्लियों और चूहों वाले फिल्टर लगाकर सेल्फी न ली जाए तो उनका दिल ही नहीं गुजरता। और सेल्फी के बारे में एक शेर अर्ज करना चाहूंगा रूए इकबाल से माजरत के साथ। हाथ को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले फोन बंदे से खुद पूछे कोई रह तो नहीं गया। जनाब सदर, माजी में जाते हैं तो अरस्तू आता है और बहुत मशहूर हो जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और जहर का प्याला दे दिया जाता है और वो जहर के प्याले को मुंह से लगाए कह देता है अब्दुल्ला भाई सिगरेट पिया करो। जनाब सदर, हमने हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी माहीवाल की प्यार की कहानियां तो सुनी होंगी, ये पुराने दौर की प्यार की कहानियां थी। अब अंकल मजबूर और इजाज साहब के प्यार की कहानियां हैं। अंकल मजबूर राबिया से इतना प्यार करते थे और राबिया भी उनसे बेइंतहा प्यार करती थी और इसी प्यार ने उन्हें अंकल से अंकल मजबूर बना दिया। और इजाज साहब की कहानी तो सुनिए, उनकी कहानी तो नेक्स्ट लेवल की थी। इजाज साहिब कैंसर के मरीज, जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए, लेकिन उनकी बीवी के दिल में उनके लिए प्यार तो देखिए, जिन्हें इजाज से इजाज साहिब बना दिया और वर्ल्ड वाइड मशहूर कर दिया। जनाब सदर, वक्त की कमी की वजह से तमाशे तो और भी बहुत से थे जो बयान करता। उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। For another refresher, I would like to call Asad Ashraf from MBA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बैठे। आज मुझे दो बातें करनी है आपसे। और डीजे वाले म्यूजिक तो चला दे। माशाल्लाह इतना माहौल है बहरिया में। हाय 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 हाय। मेरे पीटीआई के टाइगर्स और टाइग्रेसेस कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। क्या नून लीग वाले बैठे हैं यहाँ पे? मैं बहरिया में इंटर हुआ तो ऐसा लग रहा था मैं कहीं यूरोप में आ गया हूं। इतना माहौल और माशाल्लाह इतनी हसीन हसीन लड़कियां। इतनी हसीन लड़कियां देख के लग रहा है और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वैसे मैंने एक चीज बड़ी सुनी है बहरिया के बारे में, डिग्री मिले ना मिले बच्ची जरूर मिल जाती है। तो फिर क्या मैं भी हाँ ही समझूं? देखें मेरे प्यारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो भी शरीफ हैं, जितने भी शरीफ हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी है कि वो अब घर चले गए हैं। और मैं आपको उनकी एक कहानी बताता हूँ। मीर साहब, अहमद मीर साहब, मेरे प्यारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इतने सदमे में पहुँच गए हैं कि मैंने उनको पिछले दिनों बताया कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो गई है। तो मुझे कहते हैं कि यार ख्वाजे मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतनी तब्दीली देख के। कहते हैं नहीं नहीं नहीं। मैंने उनको निहारी पेश की। कहते हैं यार ख्वाजे एदे विचों बोटियां कट लै। मैं क्या नवाज शरीफ साहब क्यों इन्नी ताड़े दिल विच? कहते हैं नहीं जी नहीं। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब ये पाकिस्तान की अवाम ने आपको निकाला है, अगर मैंने ये बोटियां इस हलीम में से निकाल ली तो बरोज़े मैशर ये बोटियां मुझे कहेंगी मुझे क्यों निकाला। सबसे पहले तो मैं बहरिया यूनिवर्सिटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहां पे इनवाइट किया। कादरी साहब, इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं, अपनी बात का इजहार करूं, सबसे पहले ये जो करोड़ों का मजमा इकट्ठा किया हुआ है, मुबारकबाद पेश करता हूं मैं इन सबको। रुमाल किधर है यार मेरा? कैमरामैन जरा सामने आओ।
ये करोड़ों का मजमा देख के नवाज शरीफ ने केबल बंद करवा दिया है। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया। और अब बारी है मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट की, और मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट से आएंगे उस्मान अरशद। Assalamu alaikum guys. Thank you so much for already telling everyone what my topic is. Everything is funny as far as it's happening to somebody else. Yes, the guy who was just here, he was not so much humorous, and that's why it was funny to you people. But guess what? It's not funny for him. So this is what my topic is. Everything is funny as far as it's happening to somebody else. My name is Muhammad Usman Arshad, and I am going to share some stories with you, basically, which happened in the past few months. I remember that when this video, a very famous video, Uncle Majboor Wali, yes, it came and it was viral. So I chose to send it to one of my friends. There were 2 names in the friend list, and I sent it accidentally to some other guy. The guy was actually a teacher. And the teacher was okay. I was like, okay, perfectly fine. Nothing to worry about. But soon after I realized that the teacher is of Islamiyat. And yes, it was again shocking for me. I was like, okay. It's not so much like disturbing for me. I must stay calm. Because he's an Islamiyat teacher, he won't abuse me. So yes, that stage of life told me that everything that happens to somebody else is like funny, but not funny for that guy. So I remember that when this happened, everything was going against. We being the students must realize this thing, that everything that happens to somebody else is funny for you, but not funny for others. That's it. Thank you. ये थे उस्मान अरशद। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि X forgets but the tree remembers। अभी मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट से ही आएंगे अवैस खिजर। उन्वान है मेरा जिना का पाकिस्तान। शुरू करता हूँ। तमाम तारीफ़ें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों के पालने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सदर आली वकार, कल मैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेने करीब ही एक सरकारी दफ्तर में गया। अर्ज़ की तो मालूम हुआ कि ख़ुद को इंतहाई शरीफ, मुअज़्ज़िज़ और ईमानदार शहरी साबित करने के लिए मुझे 10,000 रुपये रिश्वत देनी होगी। तो मैं हैरान हो गया। साथ ही जनाब कहने लगे कि चूँकि कल हमारे साहब का जन्मदिन है, तो अगर कुछ चाय और मिठाई का बंदोबस्त हो जाए तो मेरे करेक्टर पे 4 चांद लग जाएंगे। तो मैं मुस्कुराने लगा। मैं ही नहीं बल्कि इस भिखारी, इस दरबारी के सामने लगी जिनाज साहब की तस्वीर भी मुस्कुराने लगी। जिनाज साहब, 1 रुपया तनख्वाह लेने वाले जिनाज साहब, रिश्वत के नाम पे आग बगोला होने वाले जिनाज साहब और हिंदुस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान बनाने वाले जिनाज साहब मुस्कुराने लगे। इस मुल्क को करप्शन और नाइंसाफी से बचाने के लिए अपना मर्ज तक छुपाने वाले जिनाज साहब मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आसमान ज़र्फ हो और मोहब्बत अहले ज़मीन रखते हो, इस कदर रुसवाई के बाद भी हम पे यकीन रखते हो। कहने लगे, यकीन नहीं ईमान रखता हूँ। मैं आज भी ख्वाहिशे तकमीले पाकिस्तान रखता हूँ। जानता हूँ कि बहुत बदहाली है, लेकिन यकीन है तकदीर तो बदलने वाली है। तुम्हारे हाथों में दी थी दुनिया जहान की दौलत, लेकिन आज क्यों हर शख्स दर दर का सवाली है। हमने दिन रात मेहनत की अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए, और तुम तड़पते हो, सिसकते हो अमेरिका जाने के लिए। जानता हूं मगर ना उम्मीद नहीं हूं, क्योंकि आस आज भी जिंदा है। हया का दामन छूटा नहीं है, एहसास जिंदा है। आज भी इस मुआशरे में जब कोई छोटी बच्ची गुड़िया खरीदती है तो दुपट्टा साथ में लेती है। इसको पाकिस्तान कहते हैं। जहां खेलने को मुनासिब मैदान तक मुयस्सर नहीं, वहां अंधों की टीम 2 वर्ल्ड कप जीत कर ले आती है। इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहां 38% बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हो, वहां एक अली मोइन नवाजिश 1 साल में 21 मज़ामीन के अंदर A1 ग्रेड लेकर इस मुल्क में, इस दुनिया में आलमी रिकॉर्ड कायम करता है। इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहां 1 मिनट के अंदर MM आलम 5 जहाज गिराकर दुनिया को दंग कर दे, इसको पाकिस्तान कहते हैं।
और जहां मुल्क के सियासतदान सबका सब कुछ लूट पर खाने पर प्रगन हो, वहां पर सिर्फ एक अब्दुल सत्तार ईदी अपना सब कुछ लुटा दे, इसको पाकिस्तान कहते हैं। तो सदर आली वकार मुझे कहने दीजिए कि सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है। खा कैसे जीने पे ये भी कोई जीना है, बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूं ये नादान किस हवा में रहते हैं, है कसीदा गो फिक्र यही जिनको, हाथ में अलम लेके तुम ना उठ सकोगे लोगो। कब तक खामोशी ए जिंदा गो इंसानों, ए 12 करोड़ नौजवानों, ए 12 करोड़ नौजवानों। शुक्रिया। सदियों फलक गर्दिश करते हैं, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं, और इंसान भी कैसे, अब्दुल सत्तार ईदी जैसे इंसान। इससे पहले कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट को मैं बुलाऊं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पार्टिसिपेंट्स जो कि अपनी स्पीचेस डिलीवर कर चुके हैं वो हॉल में ही तशरीफ़ रखें। एंड पे आपको रिजल्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा, और कल जो स्पीच के टॉपिक्स होने जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब बारी है जी प्रोफेशनल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, और इस डिपार्टमेंट से पहले तशरीफ़ ला रही हैं ज़ारा। Assalamu alaikum, ni hao, namaste, and hello. Trying to cover all my bases here. I'm Zara Masood, and today my topic is ignorance is a bliss, and hence I ignore everything. It's embarrassing to admit I'm one of the most densest members of my friend circle. I am lost when people are gossiping about some person that I've never heard of, or I can't even recall if I did. I'm very bad with names. I'm not as up to date on social media and international news as compared to my peers. And most of my time is spent and wasted on the internet watching videos of vexed felines and such. I sometimes, of course, feel guilty about my own ignorance, but the other part of my consciousness goes like, who cares? I'm a nihilist in that fashion. But thanks to this lovely motto of how it's such a bliss, I just go on and ignore the vast stream of information that is usually depressing and comes slapping us in our faces nowadays. Yes, I know how ignoring and shutting my eyes off to the horrors of the world today, it makes me come across as selfish. But bear with me. You have to admit, today's media is mostly just fear-mongering and sensationalizing catastrophes. I've seen hundreds of articles regarding Iraq and Iran and their earthquakes and deaths and tragedies, and not one linked me to a charity organization so that I may actually help. People, in the name of awareness, spread fear-mongering news with their baiting headlines in order to garner as many clicks as possible for their own egos and means. I'm sick of it. I'm sick of cynical commenters and journalists going about saying that, oh, Qiyamat aa rahi hai, the end is nigh, repent, oh. Isn't it quite shallow that you use tragedies to emotionally blackmail people, the cost of somebody's pain for your own agendas? Not for me. This is why I mostly ignore mainstream outlets of news and media. This is why I had to ban dear Dada Abu from Facebook, because he would have inhaled his anxiety medication at this rate. Of course, first of all, what is the point of me knowing every tragedy, every accident or natural disaster and every nook and cranny on this earth, on this planet, on this globe? I'm not Superman. I can't get there with this relief right away. And I'm not even a meteorologist. It's not my job to track the next Hurricane Irma. If by all means you think I can help, yes, let me know. Let me know how I can donate and help victims. But if you're gonna come to my face and start hopping around saying I'm a terrible person for not talking about this tragedy that happened 5 minutes ago, then I'm gonna take a fresh fish and hobnob you with it. And yes, that is the actual word if you're wondering. I'd like to neatly wrap up my points by stating that, of course, I'm not advocating we go off to the nearest roof and chuck our cell phones. I love my cell phone. I love the conveniences of modern society. But I am saying is we should take a break from time to time from this influx of information and take a walk outside, breathe in some fresh, crispy air. Intellectuals will go on telling me that I am trying to hide myself from the horrors of the world, but I'll just throw fresh sheets on them. And I'll go on being ignorant by their standards, but I will do my part on helping this society, helping this earth, because ignorance is a bliss.
So I'll ignore everything and I won't share fear-mongering news that doesn't do a dime of good. Thank you for your time. ये थी प्रोफेशनल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ज़ारा, और अब इसी डिपार्टमेंट प्रोफेशनल साइकोलॉजी से आ रही हैं हिना अमान। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा किराम, मेहमान गिरामी और मेरे अजीज़ तालिबे इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है पुरदम है अगर तू तो नहीं कोई ख़तरा उफ्ताद। जनाब आली, किसी भी कौम की तरक्की और कामयाबी के पीछे उसका यही राज होता है कि बहुत से मुश्किल हालात और हादसात का बहुत अहम किरदार होता है। अगर ज़िंदगी आज खुद चले और कोई भी मुश्किल हालात मत आए तो ये है कि ज़िंदगी ठहर जाएगी और उसको लहू गर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत सी कौमों में ये चीज़ होती है कि काबिल फ़ख्र ज़िंदगी गुजारने का उनको मौका ही ना मिले। तारीख़ इस बात की गवाह है। तारीख़ को उठा कर देख लीजिए कि अगर किसी कौम पर जिस कदर कड़े हालात आए उसने इसी कदर पलट कर उसका सख्त मर्दाना वार मुकाबला किया। और इस सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके नौजवानों ने इस चीज़ से नित नए तरीके सीखे अपने हालात का मुकाबला करने के लिए। हर बार एक नया अज़म, वलवला और जोश सीखा। इसी बारे में इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, पलटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अब अगर इब्तदाई इस्लाम पे हम एक नज़र डालें तो उसमें यह है कि कितने ही मुश्किल हालात और वाक़यात में हमारे पैगम्बरों ने दीन इस्लाम की तबलीग का काम जारी किया। नई तर्ज की मुखालफत, बहुत सी तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने जज्बा, जोश व वलवला बिल्कुल अपने हाथ से इस चीज़ का दामन नहीं छोड़ा। इसी बारे में क्या खूब कहा है, काफिर है तो भरोसा करता है शमशीर पर, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग लड़ता है सिपाही। ये जोश व वलवला ही है कि जिसने बातिल को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद यही है कि उसने अपनी कामयाबी को हासिल किया जिसके लिए बहुत टाइम से एक तगो-दो जारी थी। हमारी तारीख बहुत सी इन मिसालों से भरी पड़ी है, ये जिसमें ना तो हथियार थे ना साजगार हालात, लेकिन फिर भी सिर्फ थी तो उनके अपना जोश व वलवला, हरदम एक पुरदम कैफियत जिसने आने वाले हालात से उनको एक पुरदम रखा और ख़तरा अफ्ताद को शिकस्त दी। अब ज़रा नज़र दौड़ाइए बरे सग़ीर के हालात पर। बरे सग़ीर वो क्या चीज़ थी कि जिसने इन तूफ़ानी हालात में भी मुसलमान कायदीन का बाल भी बाका ना होने दिया। हर खित्ता ये जानता था कि मुसलमान कायदीन जो कि मुट्ठी भर है, उनके पास ना तो कोई दौलत है ना ही कोई खातिर ख्वाह ताकत, लेकिन उनके पास अगर कुछ था तो वो सिर्फ उनका अपना जोश, वलवला, ईमान और ख़ुद पे भरोसा था। मगर सद अफसोस हमारे उन दुश्मनों की कम नज़ीर पर जिन्होंने इस बात को बिल्कुल भी ना देखा कि असल शय तो वो वलवला है जो मुसलमानों को बाकियों से ऊपर लेकर जा रहा है। और इस तरह तारीख हमारे बहुत सी कारनामों से भरी पड़ी है जो हमारे लिए मशअले राह है। आज अगर मौजूदा हालात पे हम नज़र डालें तो हमारे नौजवान नस्ल आजकल बहुत बेसबाती, बेयकीनी का शिकार है। इन हालात में बहस ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये बहस यहाँ पे हम नहीं कर रहे किसने क्या किरदार अदा करना है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे इन इंतहाई अहम हालात में हमारे अपना डट कर मुकाबला करना है और बहैसियत अगर नौजवान हम अपना किरदार पहचान लें, हम अपनी तालीम को अपना हथियार बनाकर आगे चलें तो कौन सी वो चीज़ है, फिर कोई गम नहीं कि हम अपना खोया हुआ सुकून हासिल नहीं कर सकते। अगर हम तालीम को ही हथियार बनाएं, नए अज़म के साथ आगे बढ़ें तो उस्ताद से टकराने के लिए हम हर हालात में मुकाबला कर सकते हैं। इसी बारे में शायर ने क्या खूब कहा है, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़ुबान हो जा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। कभी लौट आए तो न पूछना उन्हें देखना बड़े गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। अब है जी बारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, और इस डिपार्टमेंट से सबसे पहले आएंगे सैयद हैदर अली शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम जनाब सदर ज़ी-वक़ार और हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस पुरवक़ार महफ़िल में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है वो अल्लामा इक़बाल के शेर का ये मिसरा है कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लामा इक़बाल में की शायरी महज एक शायराना तशबीह नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी शायरी से एक गाफिल कौम को बेदार करने की कोशिश की है। उनकी शायरी में परचम हक को तामे कहीं पर सलाहुद्दीन अयूबी नारज़न है तो कहीं पर टीपू सुल्तान, कहीं पर फातेह उनदस अपनी कश्तियां जलाता हुआ नजर आता है
तो कहीं पर तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर के कारनामे दर्ज है। और इसी कोशिश में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि नहीं है तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं है तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। मेरे अजीज साथियों, अल्लामा इकबाल हमें यह पैगाम दे रहे हैं कि मैं मुसलमान नौजवानों, दुनिया से मोहब्बत, ऐश व इशरत से मोहब्बत और आसाइश और आयश की पैरवी उसे जेब नहीं देती, क्योंकि जब इंसान दुनिया और दौलत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो वो अच्छाई और बुराई में तमीज करना भूल जाता है। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत का हुसूल बन जाता है, जिसके लिए वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। और मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि इस्लाम भी हमें इससे मना करती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना जबकि काफिर के लिए जन्नत है। और यही वजह है मेरे अजीज साथियों कि अल्लामा इकबाल हमें पैगाम देते हैं कि मुसलमान नौजवान सख्तियां बर्दाश्त कर, तकलीफात बर्दाश्त कर, मगर कभी जुल्म के सामने सर ना झुका और अपने आप में शाहीन के औसाफ पैदा कर। मगर ए मेरे आज के नौजवान, अफसोस सद अफसोस की शाही न बना तू, अफसोस सद अफसोस की शाही न बना तू, देखे न तेरे आंख ने फितरत के इशारे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे नजरों के सामने एक तरफ इकबाल का शाही है जो कभी परवाज से तक्कर नहीं गिरता, तो दूसरी तरफ मेरा आज का नौजवान है जिसमें परवाज की भी हिम्मत नहीं। एक तरफ इकबाल का शाही है जो तकदीर से पहले खुदी को बुलंद करता है, तो दूसरी तरफ मेरा आज का नौजवान है जो नाइट क्लब और फिल्मों में अपना मकाम तलाश कर रहा है। लेकिन अल्लामा इकबाल की शायरी मायूसी की घटाटोप अंधेरों में उम्मीद की किरण दिखाने वाली शायरी है। वो फरमाते हैं कि आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। वक्त की कमी की वजह से अल्लाह हाफिज। ये थे सैयद हैदर अली शाह जो बड़े वलवला अंगेज अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही आएंगी अतिया बाबर। Ladies and gentlemen, only dead fish go with the flow. I pondered over this topic for days and nights, and I came up with two perspectives, literal and figurative. Well, I always thought that the whole process of happiness was in letting go, in being able to put absolute trust in the flow of life and then repositioning oneself to go with it. But this quote was exactly the opposite. The entire universe in this case is full of dead things then, as nothing, ladies and gentlemen, absolutely nothing can go against the universal flow. Well, our body is designed in a set manner. The inhale and exhale of our breath, the flow of pure and impure blood, the intake of food and excretion of waste, they all are in a set manner. Can they afford to not follow the flow of universe? Can you excrete from your mouth and eat from your behind, no matter how beautifully shaped they are with all those diet and exercises? Thank you. और आखिर में बारी है मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट की। मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट से सबसे पहले आ रही हैं सिमरन इंग्लिश स्पीच के लिए। Assalamu alaikum everyone. I've been nervous for this declamation. If I choose not to look at you doesn't mean that you are not watching me. If I choose not to listen to what you're saying does not mean that you are not hearing every single word that I am uttering today. Nothing in this world is more dangerous than sincere ignorance and conscious stupidity. Martin Luther King. I've always been an inquisitive person, so I used to wonder to myself, how is it possible that people could find bliss in ignorance? Well, I found the answer to this question to
years prior, when my grandmother was diagnosed with leiomyosarcoma. This is a rare malignant cancer. At that time in life, we could not unfurl this bitter truth in front of her that she did not have much time to live. Around that, sorry. But this situation, it's circumstantial. It's not generally delighted upon. Ignorance may be benightedness. It may be cluelessness. It is ignorance. It is obliviousness and unawareness. Ignorance is all of this, and it is much more. I'm not saying that being ignorant is too huge of an issue, but it certainly might turn into something significant and monstrous if not paid attention to. Humans were born ignorant. It was discovery, experience, sharing of views and culture that progressed this world into a global village. Ignorance makes us live in la-la land, and we forget the literals of what reality exists. We start living in the realm of imagination. It's not only essential for individuals to realize that foul play is wrong, but watching Hush, when foul play wins, is far more detestable. Nowadays, intolerance and illiteracy have become a great issue. Why is this? In my book, Reflecting in One's Self, looking into your own soul, getting an education, being aware of what's happening around you, that is the solution to ignorance. With respect to my life, I too have been ignorant. 1 month, 10 days later, I'll have to give my finals. After that, a time will come that I'll have to choose my major. I am ignorant of what I want to do. Not just that, my parents have also been ignorant of the fact that my true passion doesn't lie with studying media. It lies with studying law. I'd like to sign off by just saying that we are living in a power culture, and we've been taught not to question. But there is a difference between having the right to question and disrespecting. One of my beloved savants, Socrates, was known for his wisdom. You know why? Because he was an ignorant who was not ignorant of his ignorance. Thank you. And now I would like to call Sayyid Ali Abbas from BBA 1. Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। आज वो दिन आ गया पीटीआई वालों, जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। माशाल्लाह से हमारी खवातीन इतना मेकअप करके आई हैं कि नजर ही नहीं आ रही हैं। ये एक तब्दीली की अलामत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तब्दीली का आगाज कैसे हुआ। जब मैं इस दुनिया में आ रहा था तो नर्स ने कहा तब्दीली आ रही है, और जब मैं इस दुनिया में आ गया तो नर्स ने कहा तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और आफ्टर दैट बिलावल भुट्टो की मैं थोड़ी मिमिक्री करूंगा। बिस्मिल्लाह। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभालें, वरना लंदन पुलिस तो क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। खून चाहिए, खून देंगे हम, जान चाहिए, जान देंगे हम। ये भुट्टो। और अब हमारे डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के आखिरी पार्टिसिपेंट मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट से साद। जनाब सदर वकार, दाल में कुछ काला है। दाल में जो काला है वो गरम मसाला है। एक पल की हमको खबर नहीं मगर मंसूबा 100 साला है। उसे करप्शन करने का हक है जो मिनिस्टर का साला है, और हमने दिल किसी को दे डाला है। अब अल्लाह ही इस दिल का रखवाला है। हम उनका क्या चुराते थे कि हमें दिल से निकाला है।
जनाब सदर वकार, किस्सा सुनाता हूँ आपको एक दिन का, जब मैं एक सड़क पे जा रहा था, गीत गुनगुना रहा था, दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, हसीन चेहरों को देखता जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक दोशीज़ा पे पड़ी। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, नैनों से नैना लड़े, मैं आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ी, हमारे दरमियान फासला कम से कम तर होता जा रहा था और मुझे अपनी किस्मत पे रश्क हो रहा था कि कहाँ वो ब्यूटी क्वीन और कहाँ मैं मिस्टर बीन। मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, मगर समझ नहीं आ रहा था कि दाल में क्या काला है। नीचे देखते ही पता चला मेरे आगे एक नाला है और मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। और जनाबे वाला हिट हो गया है चाय वाला, मगर नासिर खान जान को नहीं है कोई पूछने वाला। ऑक्सफोर्ड चली गई है मलाला, कराची किंग्स में आ गया है लाला। बात करते हैं कुछ बीयू टीवी वालों की, तो बीयू टीवी वाले देते हैं चाय का खाली प्याला, ऊपर से इनको चाहिए एक और कैमरे वाला। इतनी नाजुक सूरत हाल और एक साहब पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अरे भाई दाल में था कुछ काला इसीलिए तो निकाला। जनाबे वाला, हमारी कौम में टैलेंट की कोई कमी नहीं। आप ही बताएं, जो कौम घास खा के एटम बम बना सकती है वो गधे खा के क्या क्या बनाएगी। कौम से याद आया, इंतखाबात करीब हैं, कल मैं एक जलसे में गया, वहां नारे लगाए जा रहे थे, हम आपको देंगे नए नए रोड, आप हमें दीजिए अपना वोट। मैंने थोड़ा सोचा मगर मेरा मूड नहीं बना, फिर नारे लगे, हम आपको देंगे रोटी खेपड़ा और ट्रांसपोर्ट, आप हमें दीजिए अपनी वोट वोट वोट। नाबे वाला, मैंने थोड़ा और सोचा मगर मेरा मूड नहीं बना, फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, फिर आई बिरयानी जिसने मेरे जहन में पकने वाली काली दाल पे फेर दिया पानी, ऊपर से मेरे दोस्त हमजा बल्लोच की तलकीन के टूट पड़ जानी। तो फिर क्या था, तमाम हो गई मेरे वोट की कहानी। जनाबे वाला, बात करते हैं अब कुछ इनकी, बहरिया वालों की। अक्सरों का टैक्सी कैफेटेरिया जाना होता है जहां सिगरेट पे 5000 जुर्माना होता है, मगर फिर भी वही स्मोकर हजरात का ठिकाना होता है। और कुछ दर्द दिल हमारा भी सुन लीजिए, हमें 3 घंटे जनाबे वाला 3 घंटे अटेंडेंस के लिए दिमाग खपाना होता है। हर हफ्ते क्विज़ असाइनमेंट्स के लिए तैयार होके आना होता है और इतनी तैयारी के बावजूद हमारे लिए कंडे का नजराना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ मौजूद हर शख्स होगा मेरी तकरीर को पसंद करने वाला, क्योंकि दाल में तो था ही कुछ काला, अपना अंदाज भी था सबसे निराला। भैंस रखने का तकल्लुफ हमसे हो सकता नहीं, भैंस रखने का तकल्लुफ हमसे हो सकता नहीं, सूखे दूध का डिब्बा जो है रखा हुआ, और घर में रखे गैर महरम को मुलाजिम किस लिए, घर में रखे गैर महरम को मुलाजिम किस लिए, काम करने के लिए अब्बा जो है रखा हुआ। ये थे हमारे आज की डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के आखिरी पार्टिसिपेंट साथ। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जजेस से कि वो मार्क्स कंपाइल करें, और जब तक जजेस अपने डिसीजन पर पहुंचते हैं मैं हमजा बलोच से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें महसूस करें। हमजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा बलोच। आप सब लोगों ने मुझे देखा होगा इन 4 सालों में, और आपको क्या मालूम, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, तब्दीली आले रे आ गई है, आ गई है। आज हम बात करेंगे सिनेमा शे के बारे में। सबसे पहले पूछेंगे मौलाना तारिक जमील से, मौलाना साहब कैसा था। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं कहाँ से अल्फाज लाऊं, ये दुनिया धोखा है, धोखा है, धोखा है, ये कहाँ से अल्फाज लूं, मिट जाती है दुनिया, आए हाय हाय हाय। मैं फवाद को बुलाना पसंद करूँगा और वो गाना गाएगा, सिलसिले तोड़ के चल दिए किधर, एक ही मोड़ पे बस एक ही गुजर, बीते दिनों की वो बातें याद है मगर कुछ नहीं इस जहां में जो तू नहीं इधर। Sing with me.
चाहे कुछ भी हो जाए मैं रहूंगा, चाहे वक्त थम जाए मैं रहूंगा, मैं रहूंगा हमेशा, मैं रहूंगा, मौत आए तो आए मैं रहूंगा। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभालें, मुझे मिस कॉल देते हैं। आय हाय, ओए होए होए यार प्लीज छोड़ दो यार, मैं आपको क्या पता यार, ओए होए आपको क्या मालूम है, जजेस बैठे हुए आए हैं, ओए होए प्लीज कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो यार। और किसकी करूं? आय हाय हाय, ओए होए आय हाय, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो यार, प्लीज छोड़ दो। आपको क्या मालूम? आय हाय, ओए होए रिजल्ट आ गया, फिर रिजल्ट आ गया है, फिर रिजल्ट आ गया है। अच्छा और कौन है बताओ यार, नाम शाम बताओ, कोई बंदा चंदा। आतिफ, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे ये लम्हा भी। ये मैं हूँ हमजा बलोच की मिमी, मैं अपनी मिमिक्री खुद कर रहा हूँ ये। अच्छा बाय द वे मुझसे लोग पूछते हैं कि आप वो कौन सा बंदा है जिसकी मिमिक्री नहीं कर सकते, और मैं कहता हूँ वो बंदा हमजा बलोच है, क्योंकि मेरी अपनी आवाज़ तो होती नहीं है। कुछ नहीं करें, आप चिल मारें। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे ये लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है चाहतें, तुझसे है राहतें। यार मैं चिल मारो, एंजॉय करने दो यार, लेट मी एंजॉय। यार प्लीज छोड़ दो यार, प्लीज परफॉर्मेंस करो यार, 6 बंदे कर दो यार, प्लीज 6 बंदे कर दो मुझे यार, प्लीज हमजा, ये सिनेमा शो वालों की हो रही है यार, प्लीज 6 बंदे कर दो, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ यार। थैंक यू यार सो मच और एंजॉय। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे ये लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है चाहते, तुझसे है राहते, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। Sing it to me. ओ जा रे जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जा रे जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने। ओ भाई तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं चिल मारूं, वो पे वहां पे जजेस रेयर्स वो कर रहे हैं, मैं अपने आप को एंटरटेन कर रहा हूं। यो ओ जा रे जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने। बेख्याली दी है तेजी प्यास ने, चाहे तो जरूर है कुछ तो जरूर है ये दूरियां। मैं बताना जब कंप्लीट हो जाए मुझे बताना। ये दूरियां जीने ना दे, हाल मेरा तुझे ना पता। ओ जा रे जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा, भूल जा, भूल जा। ये
वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना-ए गमे दिल। और अब रिजल्ट अनाउंस करने से पहले जो पार्टिसिपेंट्स क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, उनके लिए टॉपिक्स बता दूं। इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स के लिए जो टॉपिक होंगे वो होंगे द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड और इफ आई वर अ प्रेसिडेंट फॉर अ डे। और उर्दू स्पीच के लिए टॉपिक्स होंगे फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी और ताली एक हाथ से नहीं बजती। टॉपिक्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश जो स्पीच के लिए टॉपिक्स होंगे वो होंगे द पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड, और जो ह्यूमरस टॉपिक होगा इंग्लिश में वो होगा इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट फॉर अ डे। उर्दू में जो सीरियस टॉपिक होगा वो होगा फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी, और जो मिज़ाहिया टॉपिक होगा वो होगा ताली एक हाथ से नहीं बजती। और अब वक्त है कि हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो विनर्स हैं, उनके नाम अनाउंस करें। तो पहले आई थिंक उर्दू वालों के कर लेते हैं। थर्ड जो पोजीशन सिक्योर की है वो है मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट से साद। जो सेकंड प्राइज है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हिस्से में गया है और जीतने वाले का नाम है सेकंड पोजीशन सैयद हैदर अली। और जो फर्स्ट प्राइज है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है और विनर का नाम है हसन फराज। And now for the mimicry victors. This is actually a pretty good thing. I don't know how the winners will feel about this, but it was a tie between Sohaib from BSS1 and Hassan Tariq. The prize money will be distributed between the two winners. Alright जी, अब इंग्लिश स्पीच के जो विनर्स हैं उनके नाम अनाउंस करता चलूँ। थर्ड जो पोजीशन सिक्योर की है वो है HSS डिपार्टमेंट से हमजा याकूब। द सेकंड प्राइज गोज टू लॉ डिपार्टमेंट और जीतने वाले का नाम है सलमान अब्बास। और जो पहला पोजीशन है वो है मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट से, एंड आई मस्ट से शी वाज वेरी एलोक्वेंट, और जीतने वाले का नाम है सिमरन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद अस। अल्लाह हाफिज।